Yes, good evening, students. So today we are going to revise two board paper of 2018-19. Yesterday I have also discussed some of the questions from this paper. Now we are discussing with section C, and here question number 13 is alien species are highly invasive and are a threat to indigenous species. Substantiate this statement with any three examples. सो हेयर व्हाट इज आस्क्ड कि एलियन स्पीशीज जो हैं वो बहुत इन्वेजिव होती हैं और वेन एवर दीज स्पीशीज दे एंटर इनटू एन हैबिटेट देन दे ऑलवेज कॉज अ थ्रेट टू द इंडिजीनियस स्पीशीज। तो हमने तीन ऐसे एग्जांपल देने हैं जिसमें एलियन स्पीशीज जो हैं उनकी वजह से इंडिजीनियस स्पीशीज जो हैं उनको थ्रेट हुआ है। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। yes, no, it is from biodiversity. So the answer, if we have to write the answer of this question, then our point number one is that we have to give the example of Nile perch. The Nile perch, it is when introduced in Lake Victoria. What it do? Lake Victoria is in East Africa. So it led to the extinction of 200 species of the cichlid fishes there, which are the indigenous species of fishes. And if you have to write the second point, then the second point is Parthenium, Lantana, and Iconium. All of these are invasive plants and they pose a threat to the indigenous species that are growing in the native habitat. And point number three is introduction of the African catfish, that is Clarias garipinus, for aquaculture. It causes a threat to the Indian catfishes which are already present in the rivers. So these 3 points you have to write in question number 13. Now question number 14, the embryo sac in a female gametophyte is 7-celled and 8-nucleate structure. Justify the statement with the help of a label diagram. So here you have to give the label diagram of the embryo sac, and all of you know very well that embryo sac, it has how many cells? 7 cells are there, and 8 nucleate stage is also found in the embryo sac. So these 7 cells, they are actually the 3 cells which are present at the chalaza end, and these are known as the antipodals, and the 3 cells which are present on the micropylar end, in which 2 synergids are there, and in between the synergids 1 egg cell is there. So all of these 3 which are present at the micropylar end, they generally form the egg apparatus. So there is a large central cell, it is present in the center, and this central cell, it contains 2 polar nuclei. So these 2 polar nuclei, they are present inside the central cell. So how many cells are there? 7 cells are there. And how many nucleus are there? 8 nucleus are there. 3 antipodal nucleus, 2 nucleus of synergid, 1 is of egg cell, and 2 nuclei of polar nucleus. So all of this thing you have to mention, and you also have to draw the well labeled diagram of the embryo sac here. Okay student, next question is list the changes that occur when a ovule mature into seed. इसमें आपने वो सारी changes लिखनी है जिसमें कि ovule जो है जब seed के अंदर mature होता है तो उसमें हमें दिखाई देती हैं. So what points you have to write here? So I am here going to read those points for you. Point number 1 is integments of the ovules harden as a tough protective seed coat. ठीक है, ओव्यूल के जो इंटेगमेंट्स है वो हार्ड होकर प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाती है. पॉइंट नंबर 2 है कि माइक्रोपाइली इट रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट. जो माइक्रोपाइली है वो एक छोटे से पोर की फॉर्म में नजर आता है सीड कोट में. थर्ड पॉइंट इज एज द सीड मैच्योर्स द वाटर कंटेंट इट रिड्यूसेस. एंड फोर्थ पॉइंट इज सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई. That means only 10 to 15% moisture is left in the seed by mass. And point number 5 which we have to include here is the general metabolic activity of the embryo, it finally slows down. And last point we have to write here is the embryo may enter into a state of dormancy. That means it reduced its metabolic activities. So all of these points you have to write in this question. List the changes that occur in an ovule when it mature into seed. Okay student, question number 15, compare and contrast the theories of evolution proposed by Darwin and Hugo de Vries. So this question is not present according to the revised syllabus, but
I am also going to give the answer of this question if some of the students they are preparing for the pre-medical test. So you have to make 2 columns, and in first column you have to write Darwin's theory of natural selection, and in second column you have to write the heading, that is D. Price theory of mutation. The student, in Darwin's theory of natural selection, our first point is minor variations cause evolution. डार्विन कहते हैं कि माइनर वेरिएशन जो है उससे एवोल्यूशन होता है. एंड व्हाट डी ब्राइस सेड म्यूटेशंस इट कॉजेस एवोल्यूशन. म्यूटेशन जो है वो एवोल्यूशन कॉज करती है. Point number 2, in Darwin's theory of natural selection, Darwinian variations are small and directional. Darwinian variations कैसी होती हैं? Small होती हैं and directional होती हैं. And D. Price theory of mutation, what it is given here, that mutations are random and they are directionless. Mutations random होती हैं और directionless होती हैं. And point number 3, in Darwin's theory of natural selection, you have to write evolution is gradual. Evolution धीरे धीरे होती है. And D. Price theory of mutation, you have to write sudden mutations, they cause evolution. So this you have to write here. Okay, student, next question is question number 16. Explain the different steps involved in the secondary treatment of the sewage. So here they have asked you about the secondary treatment. You have learned about the treatment of sewage by microorganism. So what you have learned, that the primary effluent, after the primary treatment of the sewage, it finally enters into the large aeration tanks. And here in large aeration tanks, with constant mechanical agitation, what happens? Air is also supplied by these agitators. So useful aerobic microbes, they grow rapidly and they form flocks over the surface of that secondary tank, or जिसे हम कहते हैं large aeration tank. Then what happen? These flocks, while growing, जब ये flocks grow करेंगे, they consume organic matter, and as a result they reduce the biological oxygen demand, and the effluent is passed later into a settling tank. उसके बाद effluents को settling tank में भेज दिया जाता है, and the bacterial flock, they settle at the bottom of the tank. और bacterial flocks जो हैं वो bottom of the tank पे settle हो जाते हैं, and it forms an activated sludge. और ये activated sludge बनाते हैं, and a small part of it is used as inoculum in the aeration tank. और उसके बाद वो कहते हैं कि remaining part जो है इसका, it is later transferred to the large tanks which are known as anaerobic sludge digesters. So this whole process you have to describe here. Now next question is, microbes can be used to decrease the use of chemical fertilizer. Explain how this can be accomplished. कि microorganisms जो हैं, अगर हम उनको यूज करते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंस है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं. आपने 3 ऐसे एग्जांपल देने हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, आप एग्जांपल नंबर 1 में लिखेंगे राइजोबियम के बारे में. राइजोबियम बैक्टीरिया, इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स. एंड व्हाट दिस बैक्टीरिया डू, दिस बैक्टीरिया इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, which is later used by the plant for as a nutrient. Second example देंगे आप, free living bacteria is also found in the soil, and one is Azospirillum, another is Azotobacter. So both of these bacteria, they fix atmospheric nitrogen, thus enriching the nitrogen content of the soil. And point number 3 is, many members of the genus Glomulus, that is a fungi, it form mycorrhizal symbiotic association with the higher plants. And in these, the fungus symbiont, it absorbs phosphorus from the soil and passes it to the plant. ये plant को pass कर देते हैं. And fourth point इसके अंदर है कि cyanobacteria like Anabaena, Nostoc, Oscillatoria, they are autotrophic, and microbes, they widely distributed in aquatic and terrestrial environments, and which can fix atmospheric nitrogen and also add organic matter to the soil and increase the fertility of the soil. तो ये 3 से 4 points जो हैं आप यहाँ पे लिख देंगे. Okay student, next is question number 17. So here the diagram of the across gel electrophoresis is there on your screen. How do DNA fragments migrate and resolve in gel electrophoresis? DNA fragments जो हैं वो कैसे migrate करती हैं और किस तरह से जो है वो रिजॉल्व होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसका आंसर आपने देना है.
तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द डीएनए फ्रैगमेंट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। ठीक है, एग्रोस जेल जो है, जो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पे डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड हैज द स्मॉलर फ्रैगमेंट। ठीक है, जितनी फ्रैगमेंट स्मॉलर होगी उतना ही फार्दर जो है वो मूव करेगी। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लेन 1 इज डिफरेंट फ्रॉम लेन 2, 3 एंड 4 इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द गिवन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इट शोज माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड डीएनए। एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसके अंदर अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स दिखाई गई हैं इन लेन 1 के अंदर, एंड डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स दे आर एक्चुअली फाउंड इन लेन 2 to 4। लेन 2 to 4 के अंदर आपको दिखाई गई हैं दो डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स है। तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे। इसका सी पार्ट देखिए, हाउ प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर मेड ऑब्जर्वेबल इन द विजिबल लाइट। ठीक है, प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं उनको किस तरीके से जो है आप विजिबल लाइट के अंदर देख सकते हैं। तो यू हैव आल्सो लर्नड द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स दे कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए with a compound and that compound is known as ethidium bromide। एंड ये इथिडियम ब्रोमाइड के साथ उसको स्टेन किया जाता है पहले, और उसके बाद उसको एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में, देन ओनली दोस फ्रैगमेंट्स दे आर विजिबल टू यू। तो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स which will help a couple to have 3 children where the female had blockage in the fallopian tube and the male partner have a low sperm count। ठीक है, आपने जो है कोई ऐसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो है वो सजेस्ट करनी है इस केस में। तो उसके लिए आप आंसर जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके आंसर में आप लिखेंगे ऐसा मेल पार्टनर इज सफरिंग फ्रॉम लो स्पर्म काउंट, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक इट इज यूज्ड, इसको यूज किया जाएगा, शुड बी यूज्ड टू डायरेक्टली इंजेक्ट स्पर्म इनटू द ओवम। तो हियर बाय दिस टेक्निक द स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द ओवम। एंड सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे ऐसा फीमेल पार्टनर इज हैविंग ब्लॉकेज इन द फैलोपियन ट्यूब। तो उस केस में वो कहता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो किया जाएगा एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक जो है इट हेल्प्स दैट फीमेल को कंसीव। एंड केस नंबर 3 के अंदर आप लिखेंगे इन दिस केस द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पार्टनर विल बी कलेक्टेड एंड इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ओवम के अंदर जो है स्पर्म्स जो है उनको इंजेक्ट करके द फीमेल पार्टनर टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। एंड लेटर वो कहते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर जो है फिर एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक, एंड दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इट इज लेटर ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। तो दिस टेक्निक इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप ये चीज लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट with promoter and terminator on the basis of the hypothetical template stand given below। आपको एक hypothetical template stand दिया गया है और उसके बेसिस पे आपने कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनानी है जिसके अंदर प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजंस जो हैं वो होने चाहिए। एंड पार्ट टू जो है उसके अंदर आपसे पूछा गया राइट द आरएनए स्टैंड ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अभी बनाएंगे उसमें वो कहता है कि आरएनए स्टैंड उससे जो ट्रांसक्राइब हुआ है उसका मेकअप आपने लिखना है along with its polarity। तो इसके आंसर जो है उसको आप किस तरीके से देंगे, तो यहाँ पे इसका ए पार्ट जो है उसके आंसर में आप रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, ये आपने एक स्टैंड बनाना है, तो स्टैंड जो है उसमें देखिए आपको जो है प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन जो है उसको आपने सेट करना है यहाँ पे। तो प्रमोटर रीजन जो है उसके हाँ जी, तो नीचे वाला जो स्टैंड आपको दिया गया है उसको आपने बना के दिखाना है यहाँ पे, और ऊपर वाले स्टैंड का मेकअप आपको पता है ए टी टी जी सी ए टी जी सी ए टी ए सी। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंड जो है वो यहाँ पे जो तैयार होगा उससे जो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए यहाँ पे तैयार होगा बी पार्ट में वो हो जाएगा यू ए सी जी यू ए सी यू यू ए यू जी। ये स्टैंड आप यहाँ पे बनाएंगे।
उसके बाद देखिए इसके साथ चॉइस में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, मेंशन 2 इवेंट्स इन विच डीएनए इज अनजिप्ड। ठीक है, कौन से ऐसे इवेंट है जिसके अंदर डीएनए जो है वो अनजिप्ड होता है? तो 2 इवेंट्स होते हैं। एक तो डीएनए जो है उसकी ओपनिंग जो है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान होती है, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और दूसरा जो है डीएनए की ओपनिंग जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान होती है, वेयर मैसेंजर आरएनए इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए। तो यू हैव टू राइट द आंसर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन बोथ द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्टैंड्स ऑफ अ डीएनए सेगमेंट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो आपने यहाँ पे जो है कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि जब टेम्पलेट या फिर कोडिंग स्टैंड जो है डीएनए सेगमेंट की, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर जो टेम्पलेट स्टैंड है और जो कोडिंग स्टैंड है, अगर दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उस केस में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो उस केस में आप उसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। अगर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो एक सेगमेंट जो है डीएनए की वो एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं उनको बनाएगी, और विच विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी जो है उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है। एंड सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड, 2 आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एंड हेंस फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और इस तरीके से एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उससे आगे जो ट्रांसलेशन होना है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। एज अ बायोलॉजिस्ट explain the technique to a dairy farmer for increasing the yield of herd size of a cattle in a short time. So this question is from the chapter strategies of enhancement of food production. So that is not present in the revised syllabus. So we are not doing this question, question number 20. पर जिन स्टूडेंट्स ने अगर इसका आंसर देना होता तो हम इसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। द इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूटेड द अटेम्प्ट बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी टू पेटेंट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कुरकुमिन derived from turmeric, analyze the unethical practice adopted by the multinational company and state its implication and suggest provisions in the Indian law to prevent such malpractices. तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसने अटेम्प्ट किया इंडियन गवर्नमेंट से पेटेंट लेने के लिए कुरकुमिन के बारे में, जो टर्मरिक से डिराइव किया जाता है, उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को लेकर। तो इस अनएथिकल प्रैक्टिस जो है जो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा अडॉप्ट की गई है, ठीक है, उसका एनालिसिस करने के बाद ये बताना है कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस होगी अगर उसको पेटेंट मिल जाता, और क्या क्या प्रोविजन जो है वो इंडियन लॉ के अंदर दिए गए हैं इस तरह की माल प्रैक्टिसेस जो है उनको रोकने के लिए। तो उसके फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी वांटेड टू इनकैश अवर रिच लेगेसी बाय बायोपायरेसी। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो हमारी रिच लेगेसी जो है इसको इनकैश करना चाहती है बाय बायोपायरेसी। एंड सेकंड में आप लिखेंगे इट लीड टू इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपेंसेशन एंड अनऑथराइज्ड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द कंट्री। ये सेकंड पॉइंट में लिख देंगे। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल टेक इनटू कंसीडरेशन सच इश्यूज एंड पेटेंट टर्म्स एंड इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। A 17-year-old boy suffering from high fever with profuse sweating and chills. Choose the correct option from the following disease which explain these symptoms and rule out the rest with adequate reason. एक 17-year boy जो है वो एक कहता है कि एक कंडीशन जो है उसमें देखने को मिली कि उसमें अंदर हाई फीवर और साथ में प्रोफ्यूज स्वेटिंग और चिल उसको जो है महसूस हो रहा है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो हो सकती है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, टाइफाइड, वायरल फीवर एंड मलेरिया। सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि इस केस में वो कहता है कि कौन सी डिजीज जो है वो इनमें से जो है करेक्ट डिजीज होगी। तो उसके लिए आपने जो है जस्टिफाई करना है
तो उसके लिए देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इफ द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, अगर बॉय जो है इसको टाइफाइड होता देन ही शुड हैव सस्टेन्ड हाई फीवर 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक ये कंडीशन होनी थी, सो इट कैन नॉट बी अ टाइफाइड। तो ये टाइफाइड डिजीज तो है नहीं। और अगर वो कहता है कि पेशेंट जो है इसको वायरल फीवर होता, तो उस केस में इफ द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर ही विल सफर फ्रॉम हाई फीवर, उसको हाई फीवर होना था, जॉइंट पेन होना था और हेडेक होना था। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब पेशेंट को वायरल फीवर भी नहीं है। एंड थर्ड कंडीशन है कि इफ द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, अगर बॉय जो है उसको मलेरिया हुआ है ही शुड हैव हाई फीवर, तो उसको हाई फीवर होना चाहिए और उसी के साथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी होती है, एवरी 3 to 4 डेज में उसको चिल और हेडेक भी होता है। तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि बॉय जो है वो मलेरिया से सफर कर रहा है, बिकॉज हाई फीवर एसोसिएटेड विद चिल इज पॉसिबल विद मलेरिया ओनली। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मलेरिया है, आपने मलेरिया के सिम्टम्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, आपको एक पेडिग्री चार्ट क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर नजर आ रहा है। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको एक पेडिग्री चार्ट जो है वो दिखाया गया है और उसके 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट है, इज द ट्रेट रिसेसिव और डोमिनेंट, क्या जो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है या फिर डोमिनेंट ट्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसके हम ए पार्ट के अंदर लिखेंगे कि ये ट्रेट जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट, इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। उसके बाद देखिए, इज द ट्रेट सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, तो दिस इज अ ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट अकॉर्डिंग टू द पेडिग्री चार्ट। एंड सी पार्ट में देखिए आपसे पूछा गया है, गिव द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स शोन इन जनरेशन 1 एंड द थर्ड चाइल्ड शोन इन जनरेशन 2 एंड द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड शोन इन जनरेशन 3। तो उसमें देखिए जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स विद जनरेशन 1 जो है वो फीमेल होगी, फीमेल जो है वो स्मॉल ए मेकअप रखेगी, एंड मेल जो है वो हाइब्रिड होगा, उसका मेकअप होगा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। और जीनोटाइप ऑफ द थर्ड चाइल्ड जो है जनरेशन 2 के अंदर वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। और जीनोटाइप जो है फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड का जनरेशन 3 के अंदर जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। उसी के साथ देखिए, देयर इज वन अनदर पेडिग्री चार्ट गिवन, हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमंस। The pedigree chart given below show the inheritance of hemophilia in one family. Study the pattern of inheritance and answer the questions given below. ठीक है, उसके नीचे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं पेडिग्री चार्ट के नीचे। गिव ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द मेंबर्स 4, 5, 6 इन द पेडिग्री चार्ट। तो देखिए 4, 5 और 6 जो मेंबर्स हैं पेडिग्री चार्ट के, उनके आपने जो है जीनोटाइप्स के बारे में बताना है। तो जीनोटाइप ऑफ द मेंबर 4 जो है वो XX भी हो सकता है और XXH भी हो सकता है। ठीक है, जीनोटाइप ऑफ मेंबर 5, तो मेंबर 5 जो है उसका XHY होगा, एंड जीनोटाइप ऑफ मेंबर 6 जो है वो XY होगा, यानी वो नॉर्मल होगा। बी पार्ट देखिए, अ ब्लड टेस्ट शो द इंडिविजुअल 14 इज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, ब्लड टेस्ट जो है वो ये शो करता है कि इंडिविजुअल जो 14 है वो कैरियर है हीमोफीलिया का। तो आपने ये बताना है उस केस में कि द मेंबर नंबर 15 हैज रिसेंटली मैरिड टू मेंबर नंबर 14, 15 जो है वो और नंबर 14 जो है उससे मैरिड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड विल बी हीमोफिलिक मेल, शो विद द हेल्प ऑफ ए पुनेट स्क्वायर। ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट चाइल्ड जो है वो हीमोफिलिक होगा। तो इसमें आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड टू बी हीमोफिलिक मेल इज 25%। ठीक है, तो 25% प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो उसके बाद देखिए पुनेट स्क्वायर जो है आप ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर आप शो करेंगे कि 25% जो है वो किस तरीके से जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। यस, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इन अ पॉड देयर आर 200 फ्रॉग्स। पॉड के अंदर 200 फ्रॉग्स हैं, 40 मोर वर बोर्न इन द ईयर, और 40 जो हैं वो ईयर के अंदर और बॉर्न हुए हैं। कैलकुलेट द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बर्थ रेट आपने निकालना है। तो देखिए बर्थ रेट हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न, कितने इंडिविजुअल्स बॉर्न हुए हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से।
तो कितने इंडिविजुअल्स बॉर्न हुए हैं? 40 हुए हैं। 40 को डिवाइड कर देंगे 200 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.5 फ्रॉक्स। 0.5 फ्रॉक्स पर ईयर के अंदर बॉर्न हुए हैं। और उसके बाद देखिए इसका बी पार्ट है, पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी पैरामीटर टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी, जस्टिफाई विद 2 एग्जांपल। कहते हैं कि अगर हम नंबर की फॉर्म में किसी पॉपुलेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो ये कोई नेसेसरी पैरामीटर नहीं होता पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का। तो जस्टिफाई करिए 2 एग्जांपल देंगे, ठीक है जी। उसके अंदर आप जो है उसके आंसर के अंदर लिखेंगे कि नंबर इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी पैरामीटर टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट एग्जांपल देंगे आप, इफ देयर आर 200 पार्थेनियम प्लांट, अगर 200 पार्थेनियम प्लांट है पर सिर्फ एक ही बनियान ट्री है, तो बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद अ लार्ज बायोमास, जिसकी कैनोपी या बायोमास जो है वो ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ द पार्थेनियम विच अमाउंट्स, ठीक है। पार्थेनियम के कंपैरिजन में जो बनियान ट्री है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करना या अंडर एस्टिमेट करना जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, बिकॉज बनियान ट्री जो है बेशक एक सिंगल स्पीशीज है पर परसेंटेज कवर जो है बायोमास का वो यहाँ पे मीनिंगफुल मेजर है। तो सेकेंड केस में आप लिखेंगे इन अ डेंसिटी इन अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन अ पेट्री डिश, the total number of microbes is again not an easily adoptable measure, ठीक है। अगर हमने लेबोरेटरी में एक पेट्री डिश में कल्चर किया हुआ है जिसमें काफी सारी पॉपुलेशन है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो है उनको आप यहाँ पर जो है काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसको नंबर की फॉर्म में सर्टेन केसेस में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो ह्यूज होते हैं तो काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल, और इट इज आइदर यू कैन से इम्पॉसिबल और टाइम कंज्यूमिंग। तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे। अब देखिए सेक्शन डी पे आ गए हैं हम। सेक्शन डी का ए पार्ट देखिए, पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज आर फोर्स्ड टू evict their dwelling units as the sea has inundated into the land areas. State the possible reason and suggest measures that could be taken to reduce the deleterious changes in the environment, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो increase in the level of the greenhouse gases had led to considerable heating and heating हो जाती है अर्थ की, leading to global warming। तो temperature of the earth has increased by 0.6 degrees Celsius and most of it during the last 3 decades। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट इज लीडिंग टू इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स as well as what happened, the other snow caps they also get melt, though this has a result in rise in the sea level that can submerge many coastal areas। ये आप लिखेंगे कौन से मेजर्स अडॉप्ट करेंगे, तो उस केस में आपने लिखना है पॉइंट नंबर 1, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है उसको हम थोड़ा कम कर देंगे। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी यूसेज, एनर्जी यूसेज की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेंगे। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे। स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन करेंगे। एंड रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, और ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। ऑलराइट, उसके साथ देखिए देयर इज वन अनदर क्वेश्चन, अ यंग स्पर्म व्हेल 32 a foot long was found dead off the coast. It had a large amount of human trash like trash bags, polypropylene sacks, ropes, net segments amounting to 29 kilograms in the digestive system. The whale died because of inflammation of the abdominal lining. Analyze the possible reasons for such misshapes and suggest measures that can be taken to reduce such incidents. तो यहाँ पर आपने जो है ये बताना है कि हम कौन से ऐसे पॉसिबल रीजंस जो है वो इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए इस तरह के इंसिडेंट्स जो हमको रोकने के लिए। तो उसमें देखिए फर्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। हम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो है उनका ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ प्लास्टिक देयर इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बी बाय, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग इवन अवर डेली यूज प्रोडक्ट्स। हमारे डेली यूज के जो प्रोडक्ट हैं उसके भी पैकेजिंग हम करते हैं, जैसे कि मिल्क है, वाटर है,
उसको हम पॉली बैग्स के अंदर जो है लेकर आते हैं। तीसरा उसका कारण है कि इन सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पैक्ड विद पॉलीस्टायरीन। सिटीज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो पॉलीस्टायरीन के अंदर जो है पैक होती हैं, प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, एंड वी कंट्रीब्यूट हैवीली टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कौन से मेजर्स आप अडॉप्ट करेंगे इस तरह के मिसशैप को रोकने के लिए? तो पॉइंट नंबर 1, वी कैन सपोर्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स across the country by reducing the use of plastics and use of eco-friendly packaging. Point number 2 में हम लिखेंगे we can do our bit by carrying cloth or other natural fiber carry bags. ठीक है, जब भी हमने शॉपिंग के लिए जाना है तो उस केस में पॉलिथीन बैग्स जो शॉपकीपर हमें देते हैं उसको डिस्करेज करेंगे और अपने कैरी बैग्स जो है क्लॉथ बैग्स लेके जाएंगे। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल द गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड। जो भी गार्बेज जनरेट होता है उसकी हमें सॉर्टिंग करनी चाहिए। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है उससे कंपोस्ट हमें बनानी चाहिए एंड इट इज यूज्ड फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन एंड लेटर कंपोस्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी क्वांटिटी जो है इसको रिड्यूस करने के लिए हमें उन्हें इंसिनरेटर्स में डालना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 26 क्वेश्चन दिया गया है। एन्यूप्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग रिजल्ट इन सर्टेन डिसऑर्डर्स। To draw out the possibility of the karyotype in common disorders of this kind in human beings and its consequences in individuals. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है उनके अंदर ये एन्यूप्लॉइडी होती है क्रोमोसोम्स की, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम्स की जो एन्यूप्लॉइडी है उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। आपने जो है कुछ पॉसिबिलिटीज जो है ड्रॉ करनी है कैरियोटाइप की इस तरह के डिसऑर्डर्स में, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं उनके ह्यूमंस के लिए। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome are the common example of the aneuploidy of chromosomes in human beings. Then Down syndrome के बारे में आप लिख देंगे कि Down syndrome it result in gain of extra copy of the chromosome 21, जिसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम में आप लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। तो XO टाइप ऑफ मेकअप होता है उस तरह की फीमेल का जो टर्नर सिंड्रोम रखती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आप लिखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू XXY कंडीशन। उसके बाद देखिए आपने तीनों जो है उनके सिम्टम्स यहाँ पे लिख देने हैं। तो यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट द सिम्टम्स। सो राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम and you have to write the Down syndrome. Okay student, क्वेश्चन नंबर इसके साथ जो 26 के साथ चॉइस में है वो है in a dihybrid cross white-eyed yellow-bodied female Drosophila was crossed with red-eyed brown-bodied male Drosophila. The cross produced 1.3% recombinants and 98.7% progeny with parental type combinations in the F2 generation. तो एनालाइज द अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंपेयर विद द मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो कहते हैं कि एक डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया जिसमें व्हाइट आइड येलो बॉडी फीमेल ड्रोसोफिला जो है उसको रेड आई ब्राउन बॉडी मेल ड्रोसोफिला के साथ उसकी क्रॉसिंग करवाई गई। और क्रॉस में 1.3% हमें रिकॉम्बिनेंट्स के मिले हैं और 98.7% प्रोजेनी जो है उसमें पेरेंटल टाइप ही कॉम्बिनेशन हमें मिले F2 जनरेशन में। तो आपने बताना है कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो है वो किन सिचुएशंस के अंदर हमें मिलती है और उसको मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ आपने यहाँ पे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप इसके आंसर में लिखेंगे कि मॉर्गन ऑब्जर्व्ड दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। मॉर्गन जो थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब दो जीन्स जो हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट नहीं होते हैं इंडिपेंडेंटली, तो उस केस में जो डाइहाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1 की वो उससे डिविएट कर जाती है। तो ही एट्रीब्यूटेड दिस टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स। इसका उसने क्या रीजन बताया कि दो जो क्रोमोसोम्स हैं उनका फिजिकल एसोसिएशन जो है या उसमें प्रेजेंट जो जीन्स है उनका लिंकेज जो है यहाँ पे बना रहता है। एंड कॉइंड द टर्म लिंकेज, और यहाँ पे उसने लिंकेज टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे उसने नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे टर्म उसने यूज की है। ठीक है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस जो है उसके लिए उसने टर्म यूज यहाँ पे की है रिकॉम्बिनेशन, और अगर पेरेंटल हमें कॉम्बिनेशंस मिलते हैं तो उसके लिए टर्म यहाँ पे यूज की गई है लिंकेज।
Then Morgan and his group found that even when the genes they are grouped on the same chromosome, क्या उन्होंने फाइंड आउट किया था कि अगर जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम्स पे भी प्रेजेंट हैं और बहुत ही टाइटली लिंक्ड हैं ये जीन्स, तो उस केस में हमें लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलती है। जबकि अगर कहता है कि डिस्टेंस जो है जीन्स के बीच में ज्यादा है और वो लूजली अरेंज्ड है, तो उस केस में हमें हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने सिचुएशन बतानी है, तो उस केस में आप जो है राउंड येलो, ठीक है, इस केस में वो कहते हैं कि मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो जो है उससे कैसे डिफर करते हैं, तो उस केस में आप जो है कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको यहाँ पे ड्रॉ करके बताएंगी। तो इन अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल्ड येलो and then round green and wrinkled green, they appear in the ratio of 9:3:3:1 और क्रॉस, ठीक है, जो उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एक डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको ड्रॉ करके दिखा देना है। तो एक चीज उसने यहाँ पे आपको बताई हुई है कि क्रॉस गिवन बिलो wrinkled yellow and round green is possible because the distance between the two genes are more. अगर दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो उस केस में हमें डाइहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 की नहीं मिलेगी। तो इसको आप ये मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस इसके अंदर जो आप ड्रॉ करेंगे वो RRYY स्मॉल वाई वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो इसमें आपने पूरा प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, और oogenesis का पूरा जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है विद आपने उसके साथ फ्लो चार्ट भी देना है। ठीक है, पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि पार्ट्यूरेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि पार्ट्यूरेशन इज अ प्रोसेस वेयर वाइगोरियस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस इट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट कॉजेज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे द सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशन इट ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड fetus and the placenta which induce mild uterine contractions and with fetal ejection reflex. So this fetal ejection reflex it triggers release of oxytocin hormone from the maternal pituitary, and this oxytocin hormone it acts on the uterine muscles and causes strong uterine contractions which in turn stimulates secretion of the more oxytocin. And point number 4 के अंदर आप लिखेंगे the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contractions. And last point में आप लिखेंगे this lead to the expulsion of the fetus out of the uterus through the birth canal, and this process is called parturition. And after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. तो ये सारे points आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो after this question number 27, this completes your board paper of biology 2018 and 19. So go through the paper. I will also send you the answer key of the same. So read the questions and then revise the answers from the answer key. So that's all in today's lecture, students. Have a nice day.